We will talk about today the types of drawings. What are the basics of drawings? Okay, is there any problem with the language? English language is okay with all of you, or do I use Hindi language and either mix? जी बताइए, हिंदी में स्टार्ट करना है आपको, और विथ ओके विथ इंग्लिश एंड हिंदी बोथ द लैंग्वेजेस? English and Hindi both. Okay, okay. So let's continue. Today we will see just the introduction of the drawing. So there are drawings types. There are two types of basic drawings. First is the artistic and second one is technical. So this is the bifurcation. Now let's see what is artistic. Okay, so artistic are nothing but what we create, like sketches. We create different sketches. Okay, conceptually, by with the help of our mind, brain, we just dream about it, or we can just assume how it looks. Okay, by seeing, we just sketch it. Like for example, human sketch, animal sketch, sketch of building. You can take any of the example. So this belongs to the artistic. Under artistic, it's a sketches, conceptual. And another is the diagrams, which uh, which are like design and technical. So which are the diagrams? For example, there are tabular form, there are pie charts, okay, in which we distribute, for example, population or the students of any of the class we distribute, okay, with the help of bar graphs and pie charts. So this comes under diagrams. Now let's talk about the technical that we are going to deal with. Now what is technical drawings? In which there are two types: simulated perspective, which are further divided into oblique projection and isometric projection, and the second one is technical engineering multi-view orthographic. Now what is multi-view orthographics? So orthographic projection is nothing but when you see any of the object, okay, uh, and after putting any of object, you just project your views, different views, like for example front view, top view and side view. When you project that view orthogonally means at the 90 degree, then some multi-view orthographic projection will occur. Like for example, front view, back view, left hand side view, right hand side view, top view and bottom view. So these are the multi-view orthographic projection. Now what are isometric projections? So generally isometric projection are inclined at the 30 angle. Okay, from your horizontal axis, that is the x-axis, it is inclined at 30 degree. When your any of your object is inclined at 30 degree, and with the help of 2D you create any of a 3D looking drawing, then it comes under the isometric projections. Okay, it is the just wireframe representation of any of the 3D object. सो ये सारी चीज़ें होती है टेक्निकल्स के अंदर. आइसोमेट्रिक आपका 30 डिग्री पे इंक्लाइन होता है, जो कि स्केच की हेल्प से ही बनाते हैं हम. इसमें 3D नहीं होता आइसोमेट्रिक में. आइसोमेट्रिक इज अ 2D, एंड विद द हेल्प ऑफ इंक्लिनेशन वी क्रिएट 3D. जैसे 3D दिखने वाला आपका एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन जाएगा आइसोमेट्रिक में. और जो आपका 3D ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल आप अपना मोबाइल का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है. तो अगर आप मोबाइल को या अपने आप पीसी जो है, ठीक है, कोई भी चीज़ हो, वाटर बॉटल हो, ठीक है, माउस हो, कोई भी चीज़ हो 3D में, तो ऑब्जेक्ट को आप जब टेबल पे रखेंगे, ठीक है, फर्श पे रखेंगे, तो एग्जैक्टली आप जब उसके सामने की तरफ से देखेंगे 90 डिग्री पे, तो आपको एक फ्रंट व्यू मिलेगा. यानी कि जो भी आप सामने की तरफ से देखेंगे, दैट इज कॉल्ड फ्रंट व्यू. अब उसी ऑब्जेक्ट को आप अगर ऊपर से देखोगे, तो देन इट इज कॉल्ड कंसिडर्ड एज अ टॉप व्यू, ठीक है. एंड अगर आप साइड से देखते हो तो वो साइड व्यू हो जाएगा. अब सारी चीज़ों में क्या डिफरेंस है? फॉर एग्जांपल, आपका जो मोबाइल है, ठीक है, आप वर्टिकली उसको रेस्ट करते हो फ्लोर पे या टेबल पे, ठीक है. तो अगर आप सामने से देखोगे एग्जैक्टली, तो आपको दिखेगा यहाँ पे चार्जर का स्लॉट, ठीक है, और स्पीकर वगैरह, ठीक है. पर आपकी जो डिस्प्ले है वो आप सामने से नहीं देख सकते हैं.
डिस्प्ले को देखने के लिए आपको टॉप से देखना पड़ेगा, ऊपर से, ऑब्जेक्ट के ऊपर से, तब आपको सिर्फ डिस्प्ले दिखेगी। और आपका जो बटन्स वगैरह है उसका एक शेप दिखेगा रेक्टेंगुलर शेप में, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको जो बैक पे कैमरा वगैरह होता है उसे देखना है तो आपको बॉटम व्यू लेना पड़ेगा। लेकिन भले ही आपको दिखता ना हो, ठीक है, लेकिन जब भी आप फ्रंट व्यू पे रिप्रेजेंट करेंगे या फिर आप टॉप व्यू रिप्रेजेंट करेंगे तो जो पीछे वाला कैमरा है बैक साइड वाला, वो आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन आपको ड्राइंग में शो करना होगा, जिसे कहते हैं हम हिडन व्यूज, ठीक है। हिडन लाइन से हम बनाते हैं कि हाँ ये इसके पीछे है। सो लेट्स स्टार्ट। अब इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्या है? तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, एक आप लैंग्वेज भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक साइकिल का ड्राइंग है, ठीक है, तो ये साइकिल पे क्या चल रहा है, तो यहाँ पे आपको कुछ डायमेंशन दिए हुए हैं, कुछ एंगल्स दिए हुए हैं, ठीक है, व्हील का रेडियस दिया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन की गई है। तो जब कंप्लीट आपका इस तरह से स्केच हो 2D, ठीक है, और इसमें भी आपको डायमेंशन वगैरह प्रोवाइड प्रॉपरली पूरा कर दिया जाए तो इसे हम टेक्निकल ड्राइंग बोलेंगे। यानी कि ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपने अगर एक पार्ट या फिर कोई बना लिया है, ठीक है, स्केच, जैसे ही आपका काम ख़त्म हो गया, आपने डिज़ाइन कर लिया, ठीक है, लेकिन जब वो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जाएगा, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग वाले जो भी वहाँ पे XYZ पर्सन होंगे वो आपके ड्राइंग को देखेंगे और उसमें जो भी डायमेंशन आपने पुट किए हुए हैं उसको रीड करेंगे एंड देन दे विल प्रोसेस। तो उसको पता चलेगा कि हाँ ये जो व्हील है इसमें आपको एक स्लॉट, सर्कुलर स्लॉट बनाना है जिसका आपका डायमीटर रहेगा, यहाँ पे मेंशन किया हुआ डायमीटर रहेगा, ठीक है। उसी तरह से आपको चेम्फर वगैरह लगाना है, राउंड शेप करना है, ठीक है। तो सारे जो ऑपरेशंस होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के अंदर वो आपके डिसाइड होते हैं डिज़ाइन से। जैसे कि इनके ओवरऑल लेंथ आपको क्या रखनी है, या साइकिल कितनी बड़ी होनी चाहिए, तो ये एक स्टैंडर्ड डायमेंशन आपको शो कर देता है। फिर दूसरा आपका क्या होगा कि जैसे कि आपको कॉस्टिंग वगैरह, ठीक है, निकालना हो, तो अगर आपको मटेरियल पता है, ठीक है, आपको साइज़ पता है कि हाँ इतना बाई इतना का होगा, तो आप उसकी कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। तो ये जो भी अदर पार्टीज है, जैसे कि आपने डिज़ाइन बना लिया तो वो सिर्फ आपका वहाँ से ख़त्म नहीं होता, और डिज़ाइन जो है वो आपकी प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में जाएगी, यानी कि परचेसिंग डिपार्टमेंट में, ठीक है। आपका जो भी रॉ मटेरियल परचेस करना होगा वो आपका डिज़ाइन देख के आपको पता चलेगा कि हाँ इतना मटेरियल मुझे चाहिए होगा, इससे थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा मंगाता हूँ, ठीक है। तो ये परचेसिंग डिपार्टमेंट पे ड्राइंग जाएगा, फिर आपका कॉस्टिंग होगा उसके हिसाब से। अब जब रॉ मटेरियल आ जाएगा तो वो ड्राइंग आपका जाएगा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, जहाँ पे ये पूरा का पूरा मॉडल क्रिएट होगा। फिर इसके बाद मॉडल क्रिएट होने के बाद विथ ड्राइंग आपका जाएगा क्वालिटी कंट्रोल में। तो क्वालिटी कंट्रोल में देखेंगे कि हाँ यहाँ पे जो भी ड्राइंग में प्रोवाइड किया हुआ है वो उस तरह से बना हुआ है, जैसे कि ये टायर का साइज़ है वो जितना दिया गया है उतना ही है कि कम है, ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें क्वालिटी कंट्रोल में भी आपका ड्राइंग हेल्पफुल रहेगा। एंड देन लास्ट स्टेप आपका होता है मार्केटिंग के लिए। तो मार्केटिंग में भी आपको प्रोवाइड करना होगा ब्रोशर के साथ कि हाँ ये हमारा प्रोडक्ट है जिसका ये डायमेंशन है, विड्थ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप अभी हाँ, हाल में अगर आप एग्जांपल देखें तो आप अगर कोई नया मोबाइल परचेस करते हो तो आप सबसे पहले उसमें आपको मेंशन किया होता है कि इतने इंच का आपका डिस्प्ले रहेगा, ठीक है। या फिर आप टीवी वगैरह परचेस करते हो तो उसमें भी आपको क्लियरली मेंशन होता है। तो डायमेंशन इज मोर ओवर इम्पोर्टेंट इन एवरी फील्ड, ठीक है। तो जब कोई भी आपका 2D स्केच विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन बने तो उसे हम कहते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है। तो इन जनरल वर्ड्स डेफिनेशन क्या कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है कि एक टेक्निकल ड्राइंग है जो क्लियरली डिफाइन करता है, कम्युनिकेट करता है डिज़ाइन टू अदर रिस्पेक्टेड पार्टीज, ठीक है। अदर रिस्पेक्टेड पार्टीज आर परचेसिंग डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी कंट्रोल एंड मार्केटिंग। सो दैट्स ऑल। एंड अब रोल ऑफ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स देखते हैं तो विजुअलाइजेशन हो गया, कैसा दिखेगा, ठीक है, फिर कम्युनिकेशन करने के लिए, फिर डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए, ये सारे इनके। अब आते हैं एप्लीकेशन पे। तो जो
कैड है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन या फिर ड्राफ्टिंग, ठीक है। पहले के ज़माने में क्या होता था कि पूरा एक बोर्ड होता था, बोर्ड के ऊपर एक शीट रखी जाती थी, और फिर विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेड पेंसिल एंड सम ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट दे यूज टू क्रिएट एन ड्राइंग। बट अब क्या हो चुका है कि अब हमारे पास कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है। So here we have different types of software. So with the help of software we can create any of the CAD drawing uh, in very less time, ठीक है। एक ये बेनिफिट हो गया कि आपका टाइम आपका कम कंज्यूम होगा, फिर आपका एक्यूरेसी आपकी मेंटेन रहेगी, ठीक है। ये आपका सेकंड बेनिफिट हो गया। फिर थर्ड आपका बेनिफिट क्या होगा कि वो स्टैंडर्ड आपको कहीं पे भी भेजना हो तो वो आप रिमोटली भेज सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली। तो ये कुछ एप्लीकेशन है आपके कैड के, ठीक है। जैसे कि मैकेनिकल, अगर बात करें हम मैकेनिकल की, तो उसमें आपका मशीन एलिमेंट्स के डिज़ाइंस हो गए। सो व्हाट आर मशीन एलिमेंट्स? एलिमेंट्स आर द पार्ट्स ऑफ मशीन्स, यानी कि डिफरेंट, अगर आपका एक कोई कंप्लीट सीएनसी वीएमसी मशीन है तो उनके कई सारे पार्ट्स होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल उनका टरेट होता है, ठीक है, लेथ का। फिर डोर होता है, फिर आपका एक टूल होता है, कटर होता है, ठीक है। तो वो सारे अलग अलग पार्ट्स है। फिर आपका जो कूलेंट सिस्टम है वो आपका अलग से वर्क करेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट बनाने के लिए आपका मैकेनिकल के अंदर यूज़ होता है, ठीक है, सीएनसी मशीन टूल्स, फिर रोबोटिक्स। अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो काइनेमेटिक्स, हाइड्रोलिक्स, स्टीयरिंग, ये सारे इनके एप्लीकेशंस है। तो आजकल आपने देखा ही होगा मेट्रोस के अंदर, जैसे कि न्यूमेटिक या फिर आपके हाइड्रोलिक्स जो दरवाजे होते हैं, तो ये सारी उनकी डिज़ाइन करने के लिए आपका कैड का यूज़ होता है। फिर इलेक्ट्रिकल में बात करें तो सर्किट लेआउट हो गया, जो आपकी ग्रीन कलर की सर्किट्स वगैरह होती है, ठीक है। पैनल डिज़ाइन हो गया, कंट्रोल सिस्टम हो गया। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स में देखें तो पीसी वगैरह हो गया, ठीक है। उनका आईसीज जो होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स होती है, तो उन सारी चीज़ों की डिज़ाइन होती है। फिर अगर सिविल में बात करें तो सिविल में कोई आपको बिल्डिंग क्रिएट करनी है, कोई पूरा टाउन आपको प्लान करना है, ठीक है, कोई स्ट्रक्चर आपको डिज़ाइन करना है, तो उसके अंदर भी आपका कैड का यूज़ होता है। इसी तरह से आर्किटेक्चर की बात करें तो जो इंटीरियर डिज़ाइंस होती है, ठीक है, उनमें यूज़ होता है। एरोस्पेस में आपका जो स्पेस का क्राफ्ट होता है, ठीक है, फ्लाइट सिम्युलेटर होता है, फिर आपका लोफ्टिंग होता है, एयरक्राफ्ट डिज़ाइन होता है, तो ये सारी चीज़ें आपकी एरोस्पेस में भी डिज़ाइन यूज़ होती है। फिर आती है कम्युनिकेशन पे, तो मोबाइल टावर्स हो गए, ठीक है, सैटेलाइट ट्रांसमिटिंग फीचर्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें आपकी कम्युनिकेशन में आती है। इन शॉर्ट हर जगह आपको इनके एप्लीकेशन मिलेंगे। तो हर जगह डिज़ाइन होती है, फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे, जब पहले के ज़माने में जब कंप्यूटर्स के अंदर सॉफ्टवेयर्स नहीं थे, तब किस तरह से आपका ड्राइंग बनता था। तो ये कुछ आपके ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स है इम्पोर्टेंट, जो कहीं ना कहीं आपने अभी तक में यूज़ किया होगा, आइदर इन स्कूल्स और कॉलेजेस और आईटीआईस और डिप्लोमा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ड्राइंग बोर्ड होता है, जो कि आपका हेल्प होता है ड्राइंग शीट रखने के लिए, ठीक है, सपोर्ट करने के लिए। फिर आपका आता है सेकंड मिनी ड्राफ्टर। तो ड्राफ्टर का यूज़ क्या होता है? सिंपली आपको स्ट्रेट लाइन बनानी हो एंगल पे, यानी कि 90 डिग्री पे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन लेना हो, फिर या फिर आपको पैरेलल लाइंस बनानी हो, तो आप ड्राफ्टर पे दो चीज़ें होती है, ठीक है। एक आपका लेंथ होता है, जिसमें आपका इंडिकेशन होता है लेंथ का कि 1 mm है, 2 mm है, ठीक है। और एक आपका एंगुलर होता है कि वो लाइन कितने पे इंक्लाइंड है, ठीक है। दो चीज़ें होती है। तो नीचे हम ड्राफ्टर भी देखेंगे किस तरह से दिखता है। तो लेट सपोज यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये हमारा ड्राइंग बोर्ड हो गया, इस तरह से आपका ड्राइंग बोर्ड रहता था। फिर अगर ड्राफ्टर की बात करें तो ये आपका ड्राफ्टर है, ठीक है। ये वाला जो एंड है, दिस एंड इज फिक्स्ड विथ एनी ऑफ योर टेबल, ठीक है। यहाँ पे आपको एक फिक्सिंग क्लैंप मिलता है स्क्रू के साथ, तो इसको आप टेबल पे फिक्स कर सकते हो। एंड आफ्टर फिक्सिंग दिस
clamp, you can directly create any of the your 90-degree line. So here are the angles. ओके, यहाँ पे जो सर्कुलर पार्ट है वहाँ से आप एंगल सेट कर सकते हैं, एंड हियर इट इज़ अ 90 कॉर्नर, ठीक है, तो यहाँ से आप लाइन क्रिएट कर सकते हैं. So there are different elements of the drafter. For example, these two are known as parallelogram bars, which are parallels in nature and equal in nature length, and this is called a pivot plate. Okay, so here is a pivoting plate. यहाँ पे आपका एक लॉकिंग नॉब आता है, यहाँ से आप लॉक कर सकते हैं एंगल पे, ठीक है. यहाँ पे आपको इंडेक्स प्लेट मिलेगी और यहाँ पे आपको स्केल मिलेगी, ठीक है, एंड दिस इज द प्रोटेक्टर हेड. So this is the drafter which are used in early days to create a technical drawing, ठीक है. फिर इसके बाद इंस्ट्रूमेंट पे आते हैं, तो दूसरे इंस्ट्रूमेंट आपके होते हैं, एक बोर्ड हो गया, एक आपका मिनी ड्राफ्टर हो गया, ठीक है. फिर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के अंदर कई सारे होते हैं, जैसे कंपास हो गया, बो कंपास हो गया, स्प्रिंग बो कंपास हो गया, तो ये डिफरेंट टाइप के कंपासेस है. देन डिवाइडर है डिवाइड करने के लिए, ठीक है, बो डिवाइडर, बो पेन, इंक पेन, ठीक है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे आपको. आपने कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स के अंदर भी इसका यूज़ किया होगा, जैसे कि सेट स्क्वायर हो गया ज्योमेट्री के अंदर, प्रोटेक्टर हो गया, सेट स्केल हो गया. फिर डिफरेंट टाइप्स की आपकी ड्राइंग शीट्स होती है. तो डिफरेंट टाइप्स किस तरह से होते हैं, जैसे कि A0 हो गया, A1 हो गया, A2 हो गया, ठीक है, तो ये कुछ स्टैंडर्ड शीट्स है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे उनके कुछ मेजरमेंट्स होते हैं, तो आपका जो भी आप प्रिंट निकलता है, ठीक है, तो वो आपका A4 साइज़ का शीट होता है. तो उनके डायमेंशन मेंशन होते हैं 297, ठीक है, और आपका विड्थ होता है और एक आपका लेंथ होता है. फिर दूसरे आपके जो हेल्पिंग इंस्ट्रूमेंट हो, जैसे कि इरेजर हो गया, पेंसिल को रब करना है, ठीक है, ड्राफ्टिंग ब्रश हो गया, सेलो टेप हो गया, सैंड पेपर हो गया, और कुछ पेंसिल्स. तो ये कुछ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स है जो पहले यूज़ करते थे. तो यहाँ पे लेट्स टू अ व्यू. तो यहाँ पे आपका ड्राइंग बोर्ड का साइज़ है B0, जो सबसे बड़ा वाला है, जिसका आपका यहाँ पे लेंथ एंड विड्थ दिया हुआ है 1000 एंड 1500. ओके. फिर इससे छोटा आपका B1 कैटेगरी का आता है, जो कि 700 इंटू 1000 होता है. देन आपका B2 आता है, देन B3. तो ये आपके बोर्ड के साइजेस हो गए. फिर अगर हम इंस्ट्रूमेंट की बात करें, तो ये वाला पूरा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है, जिसके अंदर डिवाइडर्स है, ठीक है, ये सेट स्क्वायर है. फिर आपका यहाँ पे प्रोटेक्टर दिखाया गया है. प्रोटेक्टर किस लिए, तो एंगुलर आपको लाइंस क्रिएट करना हो, लेट सपोज आपको 30 डिग्री पे लाइन क्रिएट करनी हो, तो यहाँ से आप इसके हेल्प से कर सकते हैं. देन कम्स सम ऑफ द स्केल्स, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए. एंड देन important things are, here we go, लेटरिंग. ओके. सो पहले के ऐसा नहीं है कि पहले जब आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं था, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इन सब चीज़ों का आपका स्टैंडर्ड्स का ख्याल नहीं रखते थे. वो पूरी तरह से स्टैंडर्ड का ख्याल रखते थे, जैसे कि लेटरिंग का जो साइज़ है वो किस तरह से होना चाहिए, लेटरिंग की स्टाइल है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, ठीक है, इंक्लिनेशन यूनिफॉर्म होना चाहिए. तो ये कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है जो फॉलो करते हैं, ठीक है, हम लोग इंजीनियर्स ड्राइंग्स में. क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपने ड्राइंग बनाया, ठीक है, और आप खुद ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो या आपको खुद को ही पढ़ना है. हो सकता है आपने जो ड्राइंग बनाया हुआ है वो, ठीक है, वो डिज़ाइन यहाँ पे हुआ है, लेकिन आउट ऑफ द कंट्री, यानी कि कोई दूसरी कंट्री में आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, तो आपका भेजा हुआ ड्राइंग थ्रू आउट द वर्ल्ड सेम होना चाहिए. सेम इन द सेंस, अगर आपने यहाँ पे 1 mm लिखा है, तो पूरे वर्ल्ड में 1 mm का जो साइज़ होता है वो कांस्टेंट होना चाहिए. ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने बता दिया कि हाँ 10 mm का कोई एक रोड है, ठीक है, 10 mm डायमीटर का. अब पता चला कि आउट ऑफ कंट्री गया तो वो 10 mm जो है बड़ा साइज़ हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. तो इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड्स, ताकि यूनिवर्सली आपका ड्राइंग एक्सेप्टेबल हो.
अब देखिए कुछ लेटर्स जो लिखते थे, ठीक है, अब ड्राइंग्स के अंदर भी नोटेशन होते हैं, जैसे कि आपको दिखाना होता है कि सारे जो डायमेंशन वो किस यूनिट में, यानी कि ऑल डायमेंशन आर इन एमएम और इंचेस। फिर आपको टाइटल बॉक्स वगैरह में भी लिखना होता है कि किसने ड्रॉ किया हुआ है, किसने चेक किया हुआ है, फिर किसने रिव्यू किया हुआ है, किसने पास किया हुआ है, ठीक है, फिर किस चीज़ का ड्राइंग है ये, फिर इसमें फर्स्ट एंगल यूज़ हुआ है या थर्ड एंगल हुआ है। तो ये दोनों क्या होती है वो हम कल देखेंगे, फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल, ठीक है, प्रोजेक्शन मेथड। तो लेटरिंग की बात करें तो उनका जो स्टाइल है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, उनकी हाइट भी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, इंक्लिनेशन यूनिफॉर्म होना चाहिए, उनकी जो थिकनेस है वो भी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, और दो लेटर के बीच जो गैप होता है वो भी आपका यूनिफॉर्म रहना चाहिए। तो लेटरिंग के लिए एक स्टैंडर्ड यहाँ पे आता है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है आईएस यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड 9609 पार्ट 0 2001 पे, और उनका रिवीजन हुआ था 2003 पे, ठीक है। ये बेस है आईएसओ 1997 में जो 3098 है उस पे बेस है ये वाला, ठीक है, बीआईएस पे, बीआईएस यानी कि ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। दूसरा आप एग्जांपल ले तो हम जनरल चीज़ एग्जांपल अगर ले तो मान लीजिए आप सब्जी लेने गए, ठीक है, तो वहाँ पे आपने 1 केजी सब्जी ली। अब 1 केजी आपने, आपको घर से बताया गया था या फिर आपको पता था कि आपको 1 केजी की रिक्वायरमेंट है। अब अगर आप जैसे बाज़ार में गए तो बाज़ार में क्या हुआ कि जो सब्जी वाला है उसने आपको 1 केजी से कम में आपको सब्जी दे दी। तो ये क्या हुआ कि आपका केजी अलग है, उनका केजी अलग है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, ताकि आपका जो वेट है, ठीक है, या आपका लेंथ है वो पूरी तरह से यूनिवर्सली वहीं रहना चाहिए, ठीक है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। तो चलिए यहाँ पे लेटर के बारे में बात करते हैं। तो इसमें दो चीज़ होती है, एक आपकी सिंगल स्ट्रोक, एक आपका डबल स्ट्रोक। तो ये क्या चीज़ होती है, मान लीजिए आप यहाँ पे टी लिख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से लेफ्ट से आप स्टार्ट करेंगे, ऊपर से राइट की तरफ जाएंगे, तो ये एक आपका सिंगल स्ट्रोक हो गया। इसी तरह से नीचे वाला जो हिस्सा है टी का, ठीक है, तो नीचे वाला जो हिस्सा है वो आप ऊपर से इस तरह से नीचे आएंगे, ठीक है, तो ये एक स्ट्रोक हो गया। अब इसमें भी कुछ रूल्स है, ठीक है, जैसे कि बेसिक स्ट्रोक क्या होता है, तो ये आपका स्ट्रेट स्ट्रोक है, टॉप टू बॉटम, ठीक है। फिर आपका स्लांट है, वो ये भी आपका टॉप से स्टार्ट होगा, बॉटम की तरफ टेपर होके जाएगा। फिर आपका एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक होता है जो कि लेफ्ट टू राइट मूव करता है। फिर आपके क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। सो दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रोक्स, ठीक है। अब यहाँ पे अगर एग्जांपल देखें तो हम जो आई लिखते हैं, ठीक है, तो आई आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, ऊपर से, और नीचे की ओर आना है। लेकिन जब हम ए लिखते हैं, ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि आप, हम लोग ए कैसे लिखते हैं, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं, फिर वहीं से नीचे की ओर आते हैं इस तरह से, एंड देन वी लेफ्ट टू राइट हम लोग जाते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपका स्ट्रोक हो गया, लेकिन ये स्ट्रोक गलत है, ठीक है, नीचे से आपको ये स्टार्ट नहीं करना होता है। अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड आपका स्ट्रोक टॉप से बॉटम तक ही जाएगा, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर ही जाना चाहिए। यानी कि ये अगर आप लिख रहे हो तो ऊपर से नीचे की ओर एक ये वाला हो गया, फिर से आपको यहाँ पे जाना है, देन यहाँ से स्टार्ट करना है, देन नीचे की ओर जाना है। तो ये कुछ रूल्स है, ठीक है। फिर इसी तरह से बी सी लेटर में आपको क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज वाला पैटर्न मिल जाएगा। फिर इम्पोर्टेंट बात करें इनकी हाइट और विड्थ की, ठीक है, तो हाइट एंड विड्थ क्या होता है, तो उनका भी एक यहाँ पे स्टैंडर्ड दिया गया है, बीआईएस स्टैंडर्ड के हिसाब से रिकमेंड किया गया है कि जो लेटर का हाइट है वो 1.8, 2.5, 3.5, 5, 7, 10, 14 एंड 20 mm तक होना चाहिए।
अब ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिफरेंट डिफरेंट आता है। फॉर एग्जांपल आपका नेम ऑफ कंपनी हो गया, तो वो आपका थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए क्योंकि वो आपको इजीली दिखना चाहिए टाइटल बॉक्स के अंदर। तो उसमें आपका यूज़ होता है 10 mm, 14 mm और 20 mm। फिर आपके जो ड्राइंग के नंबर है, यानी कि ड्राइंग्स नंबर, यानी कि ऐसा तो है नहीं कि आपने एक ही ड्राइंग बनाया होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर असेंबली है तो कई सारे ड्राइंग्स आपके होंगे, तो ड्राइंग नंबर आपको डिनोट करना है, कोई सेक्शन प्लान डिनोट करना है, तो उनका साइज़ रहेगा आपका 10 और 14। इसी तरह से जो ड्राइंग का टाइटल है वो आपका रहेगा 7 mm का साइज़, उनका हाइट रहेगा लेटर्स का, या फिर आप 10 mm भी लिख सकते हैं। टाइटल ऑफ ड्राइंग यानी कि ये किस चीज़ का ड्राइंग है। फॉर एग्जांपल ये वॉल का ड्राइंग है, ठीक है, या फिर आपका कोई रोड है, या फिर आपका कोई नोब है, तो किस चीज़ का ड्राइंग है। तो फॉर देट यू कैन गो विद द 7 mm और 10 mm। देन फोर्थ comes subtitles and headings. So the sizes for the subtitle and headings are 5 mm and 7 mm। Likewise dimensioning notes, ठीक है, शेड्यूल्स नोट्स होती है, ठीक है, मटेरियल की लिस्ट होती है कि एल्यूमिनियम का बना हुआ है, ठीक है, या फिर आपका सी एस का बना हुआ है, ठीक है, एम एस का बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको डिनोट करनी होती है 3.5 और 7 mm में, लेटर में, हाइट में। फिर टॉलरेंस वगैरह हो गया, यानी कि टॉलरेंस क्या होता है, व्हाट इज टॉलरेंस। सो टॉलरेंस इज द अलाउबल कैप गिवन टू एनी ऑफ योर पार्ट, यानी कि लेट सपोज आपका यू हैव टू क्रिएट वन ऑफ द रोड, ठीक है, विथ डायमीटर ऑफ 5 mm, बट एग्जैक्टली 5 mm क्रिएट करना इज नॉट पॉसिबल। आई थिंक कुछ ना कुछ उसमें आपका एरर होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका मशीनिंग एरर है, ठीक है, वाइब्रेशन एरर है, एटमॉस्फेरिक एरर है, या फिर आपका ह्यूमन एरर आ गया, ठीक है, थोड़ा सा सेट नहीं हुआ, हिल गया, या फिर आपका जो कटर है। तो ये सारी चीज़ें आपको थियोरेटिकल पता नहीं चलेगी, लेकिन जब आप मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिकली कर रहे होते हैं तब आप कुछ ना कुछ इसमें आपका थोड़ा सा आपको वेरिएशन नज़र आएगा, भले वो नेग्लिजिबल हो, माइक्रोन्स में हो, ठीक है, पर थोड़ा सा आपको टॉलरेंस प्रोवाइड करना होता है। तो अगर आपको 5 mm का रोड चाहिए तो आप 50 माइक्रोन, 100 माइक्रोन, ठीक है, टॉलरेंस उसमें प्रोवाइड करती है कि 5 mm के ऊपर आपका अगर 100 माइक्रोन तक है उनका डायमीटर तो भी वो एक्सेप्टेबल रोड है, अगर डाउन में है यानी कि 5 mm से कम है 100 माइक्रोन, ठीक है, तब भी वो एक्सेप्टेबल है। तो ये होता है आपका टॉलरेंस, यानी कि अलाउबल डायमेंशंस, ठीक है, लिमिट्स। देन ये सारी चीज़ें आपकी रही कि ये सारी चीज़ें आपको इंडिकेट करने के लिए लेटर की हाइट क्या रखनी है, ठीक है। अब बात करते हैं विड्थ की। तो यहाँ पे हाइट टू विड्थ का जो रेशियो है वो वेरी करता है 7/5 से लेके 7/6 तक, यानी कि 7:5। अगर आपका 7 का हाइट है, ठीक है, तो विड्थ आपका होगा 5 का। अगर आपका 14 का हाइट है तो विड्थ आपका होगा 10 का। इसी तरह से आपका 3.5 का हाइट है तो आपका विड्थ होगा, ठीक है, 0.5 के रेशियो में, ठीक है। तो ये आपका अलग अलग रेशियोज है लेटरिंग के लिए। अब बात करते हैं शीट्स की, ठीक है, जो भी आप ड्राइंग्स वगैरह बनाते हो किसी न किसी शीट्स में बनाते होगे। तो यहाँ पे डिफरेंट शीट्स है। ये वाली जो शीट है ये पूरी बड़ी वाली शीट, ठीक है, इसे सबसे बड़ी वाली शीट को हम मेंशन करते हैं A0 में। यहाँ पे आपको डायमेंशन यहाँ पे लिखा हुआ है लेंथ और विड्थ का। फिर आपका आता है यहाँ पे, तो ये वाला जो फर्स्ट वाला है ये आपका लेंथ है, ठीक है, इस तरह से हॉरिजॉन्टली, एंड सेकंड जो है आपका वर्टिकली ये वाला है। तो मान लीजिए यहाँ पे A0 है, तो A0 का क्या साइज है, तो 841 इंटू 11
89। फिर इसी तरह से A1 अगर आप देखेंगे तो इससे नीचे छोटा वाला A1 आता है, जिसका यहाँ पे साइज आपको बता दिया गया है। फिर सबसे छोटा आपका आता है A4 साइज, यानी कि ये वाला जिस पे हम प्रिंट निकालते हैं, जो कि बुक के पेजेस होते हैं, ये A4 साइज का होता है। तो A4 की साइज क्या होती है? 210 mm इंटू 297। ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट शीट्स यूज होती थी ड्राइंग के अंदर। फिर इससे आगे बढ़े तो पहले के ज़माने, अब तो क्या है, सॉफ्टवेयर के अंदर आपको जो टाइप लाइन की टाइप होती है वो आपको मिल जाती है कि आपको कितनी थिक करनी है। स्पेशली हम ऑटोकेड वगैरह में ये सारे ऑप्शंस आते हैं। सेंटर लाइन है, ठीक है, थिकनेस ऑफ लाइन है, तो डिफरेंट डिफरेंट रहती है। तो फॉर एग्जांपल कोई बाउंड्री लाइन है तो वो थोड़ी सी थिक होगी, ठीक है। इसी तरह से कोई सेंटर लाइन है, कोई डायमेंशन लाइन है, ठीक है, इनर बाउंड्री लाइन है, तो वो सारी आपकी थिन रहेंगी। तो उसके लिए अलग अलग ग्रेड होते थे। जैसे कि ये वाला एकदम थिनेस्ट है, 9H का ग्रेड है। फिर इससे थिकर थिकर, देन यहाँ पे थिकेस्ट 7B का, ठीक है। तब इसमें भी एक स्टैंडर्ड फॉलो होता था कि कौन सा ग्रेड आपको यूज़ करना है थिकनेस के लिए। तो जो 2H वाली ग्रेड है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये 2H ग्रेड है, ठीक है, ये वाला। तो ये 2H ग्रेड वाली पेंसिल कहाँ पे यूज़ होती थी? तो ये आपको इनिशियल वर्क पे कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करने के लिए, ठीक है, प्रोजेक्शन लेने के लिए, एक्सटेंशन लाइन जो होती है डायमेंशन में उसको शो करने के लिए, ये सारी आपको यूज़ होती थी। फिर एच आपका जो ग्रेड है, ठीक है, वो कहाँ पे यूज़ होता था? जैसे कि लेटर लिखना हो गया, कुछ डायमेंशन इंडिकेट करना हो गया, फिगर हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें। एंड एच बी आपका एम ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि आउटर लाइंस होती है, बाउंड्री लाइंस, वो आपका एच बी ग्रेड में लिखा जाता था। फिर इससे आगे हम बात करें तो लाइंस का भी यहाँ पे आपको एक स्टैंडर्ड दिया गया है कि जो 0.2 mm जो लाइन है, ठीक है, वो किस ग्रुप में आती है? तो वो मीडियम थिकनेस में आती है। इसी तरह से जो 0.1 mm की थिकनेस वाली लाइन है वो थिन लाइन कहलाती है। तो मीडियम लाइन कहाँ पे होती है? जहाँ पे आपको डॉटेड लाइन शो करनी है, कटिंग प्लेन शो करना है, ठीक है। उसी तरह से थिन लाइन आपकी सेंटर लाइन होगी, सेक्शन लाइन होगी, ठीक है, डायमेंशन लाइन होगी, एक्सटेंशन लाइन होगी। तो ये सारी चीज़ें आपकी थिन में आती है। देन अगर अगर आगे बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ टाइप्स ऑफ लाइन मिलेगी, ठीक है। तो कंटिन्यूस थिक लाइन किस तरह से दिखती है? तो यहाँ से आपको आप देख सकते हैं टाइप ए के अंदर यहाँ से कंटिन्यूस है एंड थिक है, ठीक है। और इनका एप्लीकेशन क्या है? विजिबल आउटलाइंस, यानी कि बाउंड्री एजिस वगैरह ड्रॉ करने के लिए इनका यूज़ होता था। फिर जो थीन वाली लाइन है उनका यूज़ क्या है? डायमेंशन लाइन शो करने के लिए, प्रोजेक्शन लाइन शो करने के लिए, कोई लीडर आपको शो करना है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें यूज़ होती थी। देन कम्स कंटिन्यूस थीन फ्री एंडेड लाइन। ये स्ट्रेट थी, ये फ्री एंडेड है। तो ये कहाँ पे यूज़ होती है? जहाँ पे आपको शॉर्ट ब्रेकिंग शो करना होता है। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई पाइपलाइन है, ठीक है, 1000 किलोमीटर की। तो आप ऐसा तो नहीं है 1000 किलोमीटर की सेम जो डायमीटर रहता है उसका पूरा का पूरा आप 1000 mm ड्रॉ करेंगे। तो आप बीच से आप यहाँ से ये वाला जो फ्री एंडेड ये कंटिन्यूस थिन लाइन है उससे आप इस तरह से ब्रेक दिखा सकते हो, ठीक है। फिर आप टोटल डायमेंशन शो कर सकते हो कि 1000 किलोमीटर की है, लेकिन वो आप इंडिकेट इतने में ही कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंटिन्यूस थिन लाइन। देन कम्स लॉन्ग ब्रेक लाइंस, ठीक है, तो ये जिगजैग शेप में। फिर आपके कई सारी यहाँ पे लाइंस है, जैसे कि चेन थिक हो गई। तो अलग अलग इनका एप्लीकेशन है। जैसे कि हिडन आउटलाइन शो करनी है, तो हिडन लाइन कहाँ पे यूज़ होती है? जहाँ पे आपका कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो आप व्यू आपने कोई सिलेक्ट किया, जैसे कि आप अपने फ्रंट व्यू आप ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन फ्रंट व्यू के अंदर आपको कोई स्लॉट वगैरह है जो कि आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन वो एग्जैक्टली वो ऑब्जेक्ट के अंदर है, जो कि टॉप से आपको दिख रहा है लेकिन फ्रंट से आपको नहीं दिख रहा है। तो वो आपको फ्रंट व्यू में आपको हिडन लाइन से शो करना होगा कि हाँ यहाँ पे स्लॉट है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपके यहाँ पे लाइंस आ गई। सो आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन मिलेगा
जैसे कि BIS का कि किस तरह से आपकी लाइन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मान लीजिए ये सेंटर लाइन है, तो सेंटर लाइन आपको हल्की सी इस तरह से शो करनी है, डैश वाली। फिर ये वाली आउटलाइन से जो कि आपकी थिक लाइन है, ठीक है। फिर ये आपका जिगजैग वाला ब्रेक लाइन है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट आप यहाँ पे ड्राइंग पे देखेंगे, ठीक है। तो डायमेंशनिंग वाला पार्ट हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं। इसमें कोई डाउट है, अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है